My dear friends, once again welcome to Sur Sangam Reflections from Jaipur. It's the second Sunday of Advent season. Last Sunday, we began this beautiful season by lighting a lamp. And once again, we'll be lighting another lamp to signify the Lord is about to come and we need to light his way. Today we have the image of John the Baptist. John the Baptist is an ordinary person. And in the gospel, it is shown to us that there were many great people at that time. There were kings, there were governors, but all of them are simply in the history book. What matters is a forceful person like John the Baptist. What does he say? He gives a beautiful message and he tells the people, make straight the way of the Lord. Where there is a hill, break that hill. And where there is a valley, you fill that valley. Then make a straight path for the Lord to come. It's only then the Lord will come. Dear friends, as you and I know, he wasn't speaking about any hill outside. He was talking about a hill inside. In other words, there are hills or blocks in our heart. And these are because of the sinfulness that we have, due to which the Lord cannot come and dwell in our heart. We know this. Same way, there are certain things lacking in our heart, because of which the Lord cannot come. When these things are done fully, then definitely the Lord will come. He will be reborn in our heart. Dear friends, that's the only way we can experience Christmas. We are all preparing for the Christmas in a beautiful manner. Yes, Christmas is a joyful season, full of enthusiasm, full of mirth. Not only among we Christians, but we can see this atmosphere lit everywhere. We see in the various places where there are many shops, there are hanging Christmas season materials everywhere. There are cakes prepared, and there are stars prepared, there are cribs prepared. But is that okay? That is not enough. That is something external. We need to do something internal. That is what exactly John the Baptist was giving a clarion call to the people. Come and do this, and the Lord will be born again. My dear friends, today I would like to give you the story of a person called Darshan Manji. प्यारे भाई और बहनों, यह व्यक्ति जो है एक साधारण व्यक्ति था, एक गांव में रहता था और वो चाहता था कि वो टाउन के लिए जाए, शहर में जाए, लेकिन वहां शहर में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और इसीलिए कई लोग जो बीमार होते थे वह डॉक्टर तक पहुंच नहीं पा रहे थे। खुद उसी को ऐसा हुआ, उसकी जो प्रेग्नेंट वाइफ थी सही समय पर पहुंच नहीं पाई और इसलिए वो मर गई। उसने एक सोचा, मैं कुछ करूंगा इसके लिए, और उसने चेनी और हथौड़ा लेकर काम शुरू किया। जो पहाड़ उनके घर के सामने था उसको तोड़ने के लिए शुरू किया। लोगों ने सोचा ये एक पागल है, क्या ये एक आदमी कर सकता है? आप यकीन नहीं करोगे कि उसने 22 साल तक वहां पर काम किया और 22 साल के बाद वहां पर एक ऐसा रास्ता है जिससे होकर 55 किलोमीटर के रास्ते को उसने केवल 15 किलोमीटर में बदल दिया। ये एक हकीकत है, यथार्थ है, इसके लिए उसको पुरस्कार भी दिया गया। प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौका आ जाता है जब हम अंधकार में भटकते हैं, हम नहीं जानते हम क्या करें। हो सकता है कि हमारे वजह से है कि हमने कोई पाप किए हो या कुछ ऐसा हुआ हो जिसके वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते। यह व्यक्ति हमें बताता है कि हम बाहर निकल सकते हैं क्योंकि हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है और वो जान जाता है कि प्रभु आएगा और मेरी मदद करेगा, वो कभी नहीं हारेगा। यही तो हम कर रहे हैं अब। क्रिसमस का मतलब ही यह है कि हमारे जिंदगी में जो दुख तकलीफ है वो मिट जाएंगे जब हम प्रभु को आह्वान करेंगे, प्रभु को हमारे दिल में आने के लिए एक बार और दीपक जलाएंगे। किस प्रकार क्या करना है ये हमारे ऊपर निर्भर है और तभी खुशियां हमारे दिल में आएगी, हमारे घर में,
हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में। अगर हम यही कहते रहेंगे कि अंधकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार उस दर्शन मान जी ने सोचा मैं कुछ करूंगा, उसी प्रकार मुझे भी कहना पड़ेगा मैं कुछ करूंगा। केक मैं जरूर बनाऊंगा और खुशियां मैं जरूर मनाऊंगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। व्यक्तिगत रूप में मुझे कुछ करना होगा और सबसे मिलकर करना होगा, और प्रभु को मुझे बुलावा देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि प्रभु आओ, मेरे दिल में आओ, हमारे घर में आओ, हमारे समाज में आओ, और जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण दूषित है, उसको मिटा दो, अंधकार को मिटा दो और एक जगमगाकर दोबारा रोशनी लेके आओ। तभी हमें महसूस होगा क्रिसमस का वह जॉय, यानी संतोष, खुशियां जो माता मरियम ने महसूस किया था। और इससे हम हमारा जो खुशियां जो हमें मिल जाती हैं, वो न केवल हमारे दिल में होगी, बल्कि सबके साथ हम बांट पाएंगे। एक मोमबत्ती दोबारा हम जला पाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।